Hello guys, my name is Muhammad Fahim Nadeem and today we are going to talk about Angular Viscometer. First, we are going to talk about ASTM standard. So, ASTM stands for American Society of Testing Material, and what they do is classify materials into different categories from A to G depending upon the nature of the material. As for our material, that is Angular Viscometer, it is classified under ASTM standard with a fixed designation of D1665. Here, D represents the main category that is solely based on the miscellaneous material, while the number 1665 is like the inventory. Now, I am going to give you an introduction about the experiment. So, our goal is to determine the specific viscosity of the tar and its fluid products. It is to be noted that the viscosity we are talking about is angular specific viscosity, not the absolute viscosity. As for how it can be calculated, is that by dividing the efflux time by the viscometer calibration factor as determined by making the same flux measurement of the water. Now, I would like to go into the theory of the equipment a bit. So, first we have absolute viscosity, that is resistance to the flow. Now, on the second number, we have angular specific viscosity, that is also the motive of our experiment. So, what angular specific viscosity is that it's nothing but the comparison of the viscosity of a substance with that of the water measured using the angular viscometer. Here, one thing that is to be noted is that the conditions of the temperature and the pressure. So, this is all about angular viscometer from my side. The next presenter will be presenting you with the details of the equipment and importance and application of the angular viscometer. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Amar Nasir. My registration number is 2018CH224. The part of the topic that is given to me is the detail of the equipment in which I present what are the parts of the angular viscometer. Angular viscometer consists of the following parts. The first one is the cup. It is the gold-plated cylindrical brass vessel, and in the figure it is the cylindrical brass vessel whose inside diameter is 106 millimeter. To the rounded bottom is attached a metal encased platinum efflux tube, and this is the efflux tube whose length is 20 millimeter and inside diameter at the top is 2.9 millimeter and at the bottom is 2.8 millimeter. The next one is the jacket. The cup is surrounded by a jacket which holds water, and in the figure it is the jacket. The jacket is provided with a thermometer clamp and the steering device. This is the thermometer and this is the steering device. A tripod supports the apparatus and also carries a ring burner. This is the ring burner and this is the tripod stand. Stopper. The flux tube in the cup is closed or opened by the hardwood stopper. This is the hardwood stopper. Thermometers. Thermometers of various categories 23C, 24C and 25C are required. Timer, stopwatch or any other timing device is used. Receivers, two types of receivers are required, testing flask and the calibration flask. This is the figure of the calibration flask. Strainer, 300 mm ASTM sieve conforming is used. Next is the importance and the applications of angular viscometer. Importance. This test method covers the determination of specific viscosity of tars and their fluid products and also measures their flow properties. Applications. Angular viscometer is used for measuring the viscosity of lubricating oils to compare the specific viscosity of tars to the viscosity of water, pharmaceutics, petroleum, chemical, scientific research, analyzing the flow properties of milk, checking the viscosity of jams and syrups. Thank you. My name is Muhammad Umar and I am going to present procedure of this experiment and my registration number is 222. प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने इसमें बेसिकली करना क्या है। हमने इसमें बेसिकली अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने का विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड विस्कोमीटर एक टूल है,
इसे हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अपना आउटर बाथ फिल करते हैं और उसमें टेम्परेचर सेट करने के लिए उसे फिल कर लेते हैं, और अपना जो मटीरियल होता है हम उसे अपने विस्कोमीटर में डालते हैं। तो क्योंकि हमने क्या चेक इसमें क्या होता है, तो हम इसमें सबसे पहले करते हैं कि एट रूम टेम्परेचर पे हम उसे विस्कोमीटर में डाल के लीड ओपन करते हैं और उसका टाइम का फ्लो टाइम नोट करते हैं, कितने टाइम में वो खाली कर रहा है विस्कोमीटर। और उसके बाद हम दोबारा उसे डालते हैं, उसमें अपना टेम्परेचर सेट कर लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर हम उस पर देखते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट करने के बाद वो कितनी देर में नीचे आता है। उस तरह हम टाइम कंपेरिजन करके अपना निकालते हैं कितनी देर में उसमें टेम्परेचर में क्या इफेक्ट है। तो आए अपने थ्रेटिकल प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो थ्रेटिकल प्रोसीजर में सबसे पहले इसमें लिखा होगा थारोली क्लीन एंड ड्राई द कप एंड आउटलेट ट्यूब ऑफ विस्कोमीटर एंड इंसर्ट दिस पेपर। तो वो ये कि सबसे पहले हमने अपने सारे फिल्टर्स को अच्छी तरह वॉश करना है, और उसके बाद अपना वो विस्कोमीटर और उसमें सारा कुछ डाल दें, इंसर्ट दिस पेपर कर। उसके बाद हमने फिल द आउटर बार एंड ब्रिंग इट टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर टेस्ट। हमें अपना आउटर बार फिल कर लेना है, ताकि जब हमें टेम्परेचर सेट करना तो हम उसके हिसाब से जस्ट लाइक हीट एक्सचेंजर एक्ट करेगा कि हम अपना आउटर बार फिल करेंगे, उसमें पानी जो होगा उससे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जिससे अंदर विस्कोमीटर में जो भी मटीरियल होगा उसका भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो उसके बाद हमारे पास है pour the material into the cup until it exactly reach the top of the three measuring points when the instrument is level। तो ये वही है कि हमने अपना ये उसने बताया कि विस्कोमीटर कैसे फिल अप करना है। तो उसके बाद हमारे पास है पोजीशन द 50 ml टेस्टिंग फ्लास्क सो दैट द बॉटम ऑफ फ्लास्क इज 130 पर। ये एरर है कि इतने एरर तक हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। below the discharge end of the flux tube and adjust it so that effluent will strike the narrow portion of the neck of the flask near or slightly below the calibration line। ये सारा नीचे जो बॉटम फ्लास्क है उसे सेट करने का तरीका है कि हमारा जो है वो ज़्यादा मतलब स्प्लैशिंग ना हो, वो सारा जो उसने सेटिंग बताई हुई है उसकी। और उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास है प्लेस द लिड एंड इनर थर्मोमीटर इनटू द पोजीशन एंड मेंटेन द बाथ फिल द डीजल ऑयल इन द एस्टिमेटेड टेम्परेचर। और हमने अपना डीजल ऑयल जो हमारा मटीरियल आपके पास जो वो फिल करना है, मेरे पास डीजल ऑयल है तो मैंने डीजल ऑयल उसमें फिल किया और उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया और लिड को बंद कर दिया। जब लिड ओपन किया साथ ही स्टॉप वॉच ऑन किया और टाइम नोट कर लिया कितनी देर में वो खाली हो रहा है विस्कोमीटर। उसके बाद मैंने दोबारा फिर विस्कोमीटर में अपना डीजल ऑयल डालना है, तो अपना टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करते जाना है, और अनटिल जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा मैंने थर्मोमीटर की मदद से यहाँ पे शो भी करवाया गया है कि ये हमारे पास थर्मोमीटर है, एक वायर हमारे पास आउटर से बात के लिए, और ये अंदर ये हमें विस्कोमीटर का बताया कि इसमें इतना टेम्परेचर होगा। तो जब विस्कोमीटर वाला हमें थर्मोमीटर शो करवाया 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसके बाद हमने अपना फिर से हीट करना बंद कर देना और अपना स्टोव वॉच ऑन करके दोबारा फिर टाइम नोट करना है कि कितनी देर में विस्कोमीटर फिर खाली हो रहा है। तो इस तरह ये टाइम नोट करने के बाद ये आगे उसमें लिखा check the abrasive temperature, again fill the viscometer with diesel oil and set the temperature at 50 degrees Celsius। Check the accuracy of temperature reading by holding the stopper firmly in the position and rotating the cover at short interval during the first 2 minutes, but do not disturb the material during the last minute। तो ये उसमें सारी एक्यूरेसी है कि हमने चेक करना है कि अच्छी तरह वो फिल हो गया और बंद हो गया, और ताकि कोई बाद में एरर नहीं। उसके बाद हमारे पास व्हेन दीस कंडीशंस हैव बीन मीट विथड्रॉ द स्टॉपर फ्रॉम द फ्लक्स ट्यूब। तो हमने फ्लक्स ट्यूब से वो स्टॉपर निकाल लेना है और साइमल्टेनियसली स्टार्ट द टाइमर, अपना टाइमर स्टार्ट कर लेना जो भी हमने स्टॉपर है जो भी हम किया हुआ, एंड सस्पेंड द स्टॉपर बाय द हुक ऑन द कवर। और उसके बाद हमने वो उसे ओपन कर देना। डिटर्मिन द टाइम 50 सेकंड फॉर 50 ml ऑफ मटेरियल टू फ्लो फ्रॉम द विस्कोमीटर। तो जो भी हमारा मटेरियल 50 ml जितने टाइम में फ्लो होगा वो हमने सारा नोट कर लेना। और क्योंकि हमने इसे कंपैरिजन करना है कि इसके बाकियों के साथ क्या है, तो इसलिए हम ये सारा दोबारा वाटर के साथ करेंगे, या आप अगर किसी और मटीरियल के साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आई थी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमने वो टाइम नोट किया था, तो इसके लिए हमने बस एंगुलर स्पेसिफिक विस्कोसिटी निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला हमारे पास है टाइम फॉर फ्लो 50 ml एट टेम्परेचर टी डिवाइडेड बाई फैक्टर। तो इससे हमारे पास एंगुलर स्पेसिफिक विस्कोसिटी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन है। तो इसमें जब हमने देख लिया है, जैसे हमने 25 डिग्री से जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया, तो उस पर हमारा जो टाइम पर फ्लो डीजल जब हमने डीजल डाला तो वो 75 सेकंड्स के अंदर अंदर तो विस्कोमीटर सारा खाली हो गया, मतलब सारा बॉटम पास में आ गया। और जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया यानी 50 डिग्री सेल्सियस तक गए तो टाइम ऑफ फ्लो डिक्रीज हो गया, मतलब वो जल्दी आ गया, 59 सेकंड में वो आ गया। तो इसी तरह आगे देखें फ्लक्स टाइम, तो क्योंकि हमने कंपेरिजन करने तो हमने वाटर भी ऐड किया, तो जब वाटर ऐड किया तो एट रूम टेम्परेचर वाटर 12 सेकंड्स में आ गया, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी वैसे ही कम होती है ठीक है। और उसके बाद जब हमने 50 डिग्री सेल्सियस किया टेम्परेचर तो वो 10 सेकंड में आ गया। तो जब हमने इनका रेशियो ली तो एंगुलर विस्कोसिटी भी यहाँ पे शो जैसा कि शो है कि वो भी 5.9 है 50 डिग्री सेल्सियस है, और 25 डिग्री सेल्सियस 6.25 है। तो अब इसमें भी शो है साफ के 50 डिग्री सेल्सियस पे एंगुलर विस्कोसिटी कम है और 25 है टेम्परेचर पे विस्कोसिटी एंगुलर विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
My name is Ahmed Hassan and my registration number is 2018CH220. Now my topic is interpretation of result. Next slide. In this slide we जो हमने पिछले अपने एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशंस की हैं उनसे हमने ये चेक आउट किया था कि जब हमारा टेम्परेचर कम था तब हमारी विस्कोसिटी ज़्यादा थी और जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता गया उसके रेलेवेंट हमारी विस्कोसिटी कम होती गई, क्योंकि ये एक जनरल है हमारे पास कि लिक्विड केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं वैसे वैसे हमारी विस्कोसिटी फॉल कर देती है, क्योंकि हमारी कोहेसिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं। और इसमें इसका रिवर्स होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं वैसे वैसे हमारी विस्कोसिटी भी राइज हो जाती है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट इंक्रीज कर देता है, तो उसकी ऐसे मोमेंटम ट्रांसफर भी उनका इंक्रीज कर देता है। देन हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट की प्रिकॉशंस हैं। जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करना है तो उससे पहले जो हम वाटर है जब हम उसको विस्कोसिटी मीटर में ऐड करेंगे तो हमें उसको अच्छी तरह स्टिर कर लेना है, ताकि जो हमारा फ्लूइड है जो हमने डीजल लिया हुआ है और जो वाटर है वो उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। And before collecting the diesel at a temperature, check whether the diesel is up to the indicator in the oil cup। तो जैसे ही हम विस्कोसिटी मीटर के ऑयल कप में डीजल को ऐड करते हैं तो हमने ये देखना होगा कि जो हमारा डीजल है वो हमारी इंडिकेटिंग लाइन तक आ गया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो पहले उसको इंडिकेटिंग लाइन तक फिलअप करेंगे, देन हम उसका टेम्परेचर को राइज करना शुरू करेंगे। जब तक वो वहाँ नहीं होगा तब तक हमने उस टेम्परेचर को वहाँ पे राइज नहीं करना। ऑलवेज टेक द रीडिंग एट अ स्टेबल टेम्परेचर। के रीडिंग्स को हमेशा हमने एक स्टेबल टेम्परेचर पे लेना। अगर 25 पे ले रहे हैं तो 25 ही होना चाहिए। 25 से ना ये ना हो कि 1 सेकंड बाद 26 और 1 सेकंड बाद 27। एंश्योर प्रॉपर सेटिंग ऑफ द स्टॉपर टू अवॉइड लीकेज। तो जो स्टॉपर है उसको इस कदर टाइट रखना है कि हमारा फ्लूइड लीक ना करे, क्योंकि जैसे ही छोटा सा भी फ्लूइड लीक करना शुरू हो गया हमारी रीडिंग में चेंज आ जाएगा और वो रीडिंग का जो चेंज है उसके ज़रिए फिर हमारे फ्लो टाइम में चेंज आ जाएगा। दिस इज़ फ्रॉम ऑल माई साइड एंड थैंक यू।